question. So that's why I came. See, Bharat Mata ki Jai is saying Bharat Mata ki Jai is a crime means it's not about crime. It's shameful if you are not saying Bharat Mata ki Jai because forget these ideologies and everything. Keep your ideologies side at home or at whatever the platforms. But when somebody asking you to no one will ask it. It must come through your heart itself. Because if you're not saying Bharat Mata ki Jai, indirectly saying you are saying is Bharat is not mine. So it's similar. There is no much difference. Saying India is not mine and Bharat, I don't say Bharat Mata ki Jai, the same meaning, same indirect meaning. So because we don't ask you to we whenever we want to we come at midnight to your home and say Bharat Mata ki Jai, otherwise we will hit you, kill you. No, nothing happening here. No one will say that. No one will ask you in that way. If you keep on क्योंकि देख मैंने तीन भाई मैंने भगवान का सुना मैंने सिर्फ तीन थे जोगीलैंड जे और I'm so sorry, please sir go on. Who is that? Sorry. नहीं एक्चुअली न्यूज स्पीकर ऐड किए थे तो उनका माइक ओपन रहेगा तो प्लीज सर बोलिएगा. Yeah. So so no one will ask you whenever they want they come and say Bharat because they are also equal. You are also equal. We are all equal. But if you keep on thinking too much of ideologies, too much of this is happening, human rights, it's my own wish whether I say or not. This kind of foolish and loose talk, loose thinking, overthinking of ideologies will lead you to say that I don't say Bharat Mata ki Jai and all. We are all common human. We don't have particular, this kind of fightings and everything. But still, because of political reason, if you say don't say Bharat Mata ki Jai, I call you a traitor. You're equal to a terrorist. If you say that I don't say Bharat Mata ki Jai and all, you should say. Otherwise, you will be you should be punished in whatever the extent they possible because you are not saying that no one will force you to say that. But still, if you say I don't say Bharat Mata ki Jai, there is an agenda and propaganda to make pieces of to this nation. So which is never ever possible in any next yugas in thousand of 2000 5000 years also you cannot make peace for this India. This is the this is my opinion. So you should say if you have blood in your body, if you have a mother, father, or parents really, or if you have your whatever, if you have minimum common sense or mind, you must and should say Bharat Mata ki Jai. भारत माता की जय. Jai. चलिए ऑलराइट थैंक यू भारत माता की जय. किसी को इस टॉपिक पे और कुछ अपना ऐड करना है तो प्लीज सर फ्लिप योर माइक. मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा. जॉन सर और नटखट सर, यश भाई भी हैं, विजय भाई भी हैं पहले, और विजय भाई काफी देर से बैठे हैं तो विजय भाई प्लीज गो ऑन. उसके बाद यश भाई. विजय भाई प्लीज गो ऑन. अर्जुन अभी तो पॉपकॉर्न चल रहा ना. हाँ जी हाँ जी. कोई बात नहीं मैं इनके बाद बोल. First of all, thank you very much for inviting me to this group. Very interesting conversation going on so far. पता नहीं क्यों शर्म आ रही लोगों को इधर बोलने में, बट आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे बात करनी बहुत जरूरी है. खासकर कुछ लोगों से जो ये ग्रुप में होने के बाद भी ये ग्रुप में होने नहीं चाहिए पर है. सो अभी फिलहाल तो नहीं बोल रहे, कुछ देर पहले बड़ा बोल रहे थे. सो मैंने भाई वॉइस शो कर रही है. एक मिनट होल्ड ऑन. विजय भाई मैंने बस यही अपना माइक ठीक कर लीजिए और जिसका भी माइक ऑन है म्यूट रखिएगा. प्लीज अपना माइक म्यूट रखिएगा गाइस. सॉरी विजय सर प्लीज आप बोलिए. शर्म क्यों है इन लोगों को बोलने में भारत माता की जय? क्योंकि ये वर्ड काफी रोका है. ऐसा क्या हो जाता है इनको बोलने में? कोई फोर्स तो नहीं करता इनको बोलने में. जैसे कि बताया गया एजेंडा है, जरूर है तो बताएं, हम जवाब जरूर देंगे इनका.
देखिए मेरे यहाँ पे सॉरी दिस इज यशवंत और मे आई यशवंत भाई आपसे पहले यश भाई थे, प्लीज यश भाई अपनी बात करें। यश भाई प्लीज गो ऑन। यशवंत भाई म्यूट कर लीजिए। हेलो अर्जुन बोलो, एसएम सर बोलिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। गुड आफ्टरनून एसएम सर, मैं आता हूँ आपके पास आफ्टर यश। यश के बाद मैं आपको कनेक्ट करता हूँ एक बार प्लीज, ठीक है सर? ओके ओके ओके। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आपको माइक दिया, बहुत कुछ सुन रहे हैं सर। आप ही का रूम है सर, आप ही का रूम, ऐसे मत करिए। हाँ जी यश भाई प्लीज। आपका दोस्त चला गया शेख, मजा आता है उसको जब। नहीं वो शेख भाई तथ्यों में बात नहीं करते ना, उधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। नीचे ही बैठा है, ज्यादा दूर नहीं है। देखो अर्जुन भाई, क्या है ना, भारत माता की जय इंडिया में बोलना देखो कुछ वर्गों के लिए क्राइम है। पता है क्यों? देखो, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री है ना, वी आर नॉट ओवरटली रिलीजियस, बट लुकिंग एट रिसेंट ट्रेंड्स जो मतलब चल रहा है आफ्टर हिंदूज वोक अप फ्रॉम देयर स्टूपर, इस्लाम में कंसिडर नहीं कर सकते आप। इन इस्लाम यू कैन नॉट प्लेस योर नेशनलिज्म ओवर योर रिलीजन, ठीक है? आपका धर्म आपके देश से बड़ा है, तो जिन लोगों का धर्म देश से बड़ा है उन लोगों के सामने देश की अच्छाई करना या देश की जय बोलना एक बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है। समझे अर्जुन भाई? इसलिए क्राइम है देश में बोलना, क्योंकि कुछ शांति दूत भी अनफॉर्चुनेटली इस देश के वासी हैं, जिनका कुछ कर तो नहीं सकते पर अब झेलना तो पड़ेगा ही। ऑलराइट यस भाई, थैंक यू। आगे थे एसएम सर। एसएम सर उसके बाद यशवंत जी। एसएम सर नमस्कार। भाई मैं भी लाइन पे वत्सल। हाँ वत्सल भाई जी नमस्कार नमस्कार। जी जी हाँ, भारत माता की जय बिल्कुल बोलना चाहिए, और बोलेगा वो जिसको ये बात समझ आएगी, जिसमें अकल होगी, जिसमें समझ होगी, जिसकी आइडियोलॉजी वहशीपना और जानवरों पर मबनी हो, जिनकी आइडियोलॉजी में ये सिखाया जाए कि जी आप मेरी सल्तनत कायम करें। मतलब वो खुदा इतना बेबस है कि वो इनको बोलता है कि तुम मेरी सल्तनत कायम करो पूरी दुनिया पर। अगर तुम में इतनी ताकत है तो तुम खुद कर लो ना। तुम अपने बंदे से क्यों कत्ल गारतगिरी करा रहे हो? जो ये आइडियोलॉजी लेके चल रहे हो तो उनको तो तकलीफ है, उनको सेंस थोड़ी है। माता कह दिया हो, माता, ये माता बोल रहे हैं, मतलब ये तो इनके देवी देवता हैं, ये देवी का नाम हम क्यों लें? पढ़े लिखे तो है नहीं, माता के मायने जाके पढ़े तो पता चले कि माता माँ क्यों बोलते हो? अपनी माँ को भी माँ मत बोला करो। और माँ का काम क्या है पहले तो ये इनको पता चले ना। इनको अपनी माँ का काम ही नहीं पता कि वो पाल पोस के बड़ा करती है, वो अपने खून को जला के दूध बना के आप वो पिलाती है। यही माँ जो है जमीन चीर करके तुम्हें गल्ला दे रही है, अनाज दे रही है, जिसको खा के तुम बड़े हो रहे हो। तो इसकी जय क्यों नहीं बोलते? इसकी जय तुम पर बोलना फर्ज है, मगर नहीं बोलेंगे क्योंकि हरामखोर हैं। इनकी आइडियोलॉजी हरामखोरी पर है। इनकी आइडियोलॉजी ये सिखाती है कि तुम जहां रहो उस जमीन के वफादार मत रहो, इस आइडियोलॉजी के वफादार बनो और इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड करो, इस आइडियोलॉजी के लिए लोगों का पसंद करो। तो प्रॉब्लम है इनकी आइडियोलॉजी। आप इनकी आइडियोलॉजी को चेंज कर दें, दुरुस्त कर दें, ये बिल्कुल इंसान बन जाएंगे, वरना ये वैसे ही लगेंगे। और भारत माता की जय बोलना, ये वहाँ यूरोप में रह के, कनाडा इंग्लैंड में रह करके हैप्पी क्रिसमस बोलेंगे गोरे को खुश करने के लिए, ताकि उसका पैसा मिले, ताकि उसका वीजा मिले, ताकि उसका पासपोर्ट मिले। आजकल यहूदियों को खुश करने के लिए शबात शलोम, शबात तोबा ये भी बोलते हैं, हैप्पी गिफ्ट थिंकिंग ये भी बोलते हैं, क्योंकि पता है कि अब दोबारा वो ताकत में है।
मगर भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है। यस क्योंकि उनको वैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जिस दिन इनको यहूदियों और ईसाइयों की तरह ट्रीट किया जाने लगे, फिर इनके चारों दबाव रोशन हो जाएंगे, फिर इनको सब समझ आ जाएगा। जरूरी है कि आपको इनकी आइडियोलॉजी को समझ करके इनको ट्रीट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दिस इज म्यूट कर लो यार, पूरा क्वेश्चन यशवंत भाई। या मे आई नाउ? प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार। यशवंत भाई होल्ड ऑन। वत्सल थे, वत्सल प्लीज गो ऑन। आई एम वेटिंग लाइक देखिए, आई विल नॉट पुट अप हेट, कि हेट डाल के कब तक काम चलेगा। सीधी सीधी फैक्ट की बात है कि लेट्स स्टार्ट विद द हिंदुइज्म। हम पैनल 80-90% अभी हिंदूज होल्ड करते हैं। सो हिंदुइज्म में हमें रामायण में ना स्ट्रेट बोला हुआ है राजा राम ने, जब वो बात कर रहे होते हैं अपने कोर्ट में इंटरनल बैठ के, जब उनके पिताजी डिसीजन लेने वाले होते हैं कि नहीं यार अब तो इन्होंने बोल दिया, अब इन्हें वनवास भेज देते हैं, तो वो बोलते हैं कि लाइक 5 वुमेन आर इक्विवेलेंट टू मदर। मतलब 5 महिलाओं की उपाधि है जो माँ से बड़ी है। और आखिर में मदर एंड मदरलैंड का एग्जाम्पल तब मिलता है जब विभीषण हाथ जोड़कर बोलते हैं ना कि राजा राम, आप राजा राम हैं, आप ये ले लीजिए। तब राजा राम बोलते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गतापी गरेयासी। तो मतलब वो सीधा बोलते हैं मदरलैंड आर सुपीरियर टू हेवन, दिस लंका मेड ऑफ स्वर्ण एंड दिस स्वर्णमयी लंका does not give me the calm and the pleasure I deserve under feet of my mother. So मदरहुड और उसका एम्फेसिस मदरलैंड के साथ हमें इक्वली बताया हुआ है। बट इन वर्शिपेबल्स की बात है कि हिंदुइज्म में वर्शिपेबल्स कोई भी आदमी जो एक डेजिग्नेशन अचीव कर लेता है, हम उनकी पूजा प्रार्थना वगैरह कर सकते हैं। मतलब सारे अवतारों को भी हम पूछ सकते हैं अगर उनका दैवत्व भी नहीं है। हालांकि हर अवतार का दैवत्व है, बट कोई भी मनुष्य जो एक उपाधि ग्रहण कर लेता है या तो फिर समाज के लिए इतना सदाकारी हो जाता है कि फिर हम उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, और मंदिरों में भी दे सकते हैं, अपने घर में भी दे सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बट कंसेप्ट ऑफ अब्राहमिज्म डू नॉट अलो देम, क्योंकि उनके फंडामेंटली इस बेसिस पर बने हैं हु इज द रियल फॉलोअर ऑफ द गॉड, हु इज द रियल फॉलोअर ऑफ द रियल गॉड। तो उसके चक्कर में हर चीज को उखाड़ देते हैं कि जब फोर्थ डॉक्ट्राइन आया, फोर्थ डॉक्ट्राइन ऑफ द गॉड, या तो फिर फोर्थ डॉक्ट्राइन ऑफ फॉलोइंग द रियल वेज ऑफ गॉड, तो उन्होंने निकाल दिया जीसस क्राइस्ट को बीच में से। बोलना नहीं, आप इनको इस तरीके से प्रे नहीं कर सकते, लाइक इन द फॉर्म ऑफ सलाह। आप इनको विशेष कर सकते हो इनके लिए, बट प्रे नहीं कर सकते। सो जिनके रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में मतलब काफी ज्यादा मतलब बिगॉटरी है, तो आप क्यों फोर्स कर रहे हो उन्हें बार बार बुलवाने के लिए? आप ऐसे आदमी से बुलवा ही मत। जस्ट रिमेम्बर इट इन योर हार्ट कि आदमी कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके रिलीजियस फंडामेंटल इसे कभी भी अलो नहीं करते ऐसी फिगर्स को कभी भी रिस्पेक्ट देने के लिए। और ये जो बाउंड्रीज हैं, इनके लिए लैंड मास और बाउंड्रीज मैटर नहीं करता। मेरा मतलब ये लैंड मास और बाउंड्रीज इनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। इनकी रिलीजियस साइकोलॉजी में दे डोंट एग्जिस्ट, मतलब बाउंड्रीज। तो मेरी अभी बात हो रही थी मेरे दोस्त से, ही इज अ कोही। सो अफगान में था, तो अभी एक्सोडस में वो पाकिस्तान चला गया। तो वो क्या था कि नाउ मुल्लाज आर रनिंग फ्रॉम शरिया रूल which will constrain them in every verse according to Islam. But as soon as they go to a free state or a non-Muslim state, they will become messenger of Sharia and peace. So this is their status and this is their level of bigotry. They will never acknowledge the fact that there are few things apart from their religious scriptures which should be respected. Either it is designation of a mother or a motherland or anyone. Like I have even seen some blunderous speeches by their religious scholar called Zakir Naik, who is explaining to a convert Muslim कि नहीं यार, your mother and your father will not go to Jannah, but you can treat them nice as much as they are alive. तो मतलब इतने pathetically stupid लोग हैं कि अब I don't get angry on them very easily. I just feel pity. So ऐसे हैं. So like I have already told कि mother there are 5 different designation of woman and femininity which can be very easily regarded as mother and which was stated straight away by Lord Ram. जिसमें भाभी माँ है and जो आपको पाल कर बड़ा करती हैं वो माँ है, आपकी माँ, मतलब
जो आपके पिता की दूसरी बीवियां हैं, और उसके बाद आपको जो मतलब जो आपको पालने पोसने वाली अगर कोई दाई भी है, इवन शी इज अ मॉम, एंड फोर्थ वन आई डू नॉट रिमेम्बर. So that's it. And that are my point. There is a massive differences in the ideologies we believe. There is a massive difference in the fundamentals. So they are nowhere equal to dharma, and they will not have any sense of entitlement or respect for anything apart which is ever written in their religious scripture. And their religious scripture is like a static homepage of a website which was created by some newbie developer, which is never going to change. That's it. Alright, Arjun ji, 20 second. Arjun ji, 20 second. 20 second. जी मुथुराज. Yeah. See, day before yesterday, one of the Muslim, not every Muslim, not all, but one Muslim person said to me, the reason I don't say Bharat Mata ki Jai, because you people, Bharat Mata, that is mother, you people say Bharat Mahabharat also, and mother means you people say mother is God, because in our religion mother is not God, Allah is the only God. If I ask Allah ka Bharat ki Jai means, will you say Jai? He asked to me. Why should I say? So you don't say Allah ka Bharat Jai, so I say I don't say Bharat Mata ki Jai, he said. I said, I asked him that, you rascal, why the hell you're taking religion in this also? If you keep on thinking too much like this, definitely we will also bring our Hindu tradition. We make sure you people say Kali Mata ki Jai. But we are not bringing that much. So it's a general nation love. So you must say Bharat Mata ki Jai, as I said. Alright, thank you. Yashwant ji. Yeah, first of all, thank you, Arjun, for letting me talk. I think Vatsal already told the way we treat our motherland goes to the Ramayana, that is Janani Janma Bhumishya Swargata Bhiriyase. It is not just in Ramayana or Mahabharata or only in Hindu tradition. Even in Quran, it is mentioned. I would just because the reason why I'm bringing Quran is I studied in a Muslim school. So I just want to name one of the quote. We usually, like, I have many Muslim friends. They are really good to me, and they love their country. We usually have a discussion like this whenever these kind of things happens. So one of the Muslim friend sent me this text like long back ago. I just keep a note of that, and I would like to quote that. It says, "O A who believe, obey God and obey the Prophet and obey those in authority from among you." This actually, what exactly it means is, there is no difference between following Islam as a religion and having loyalty to one's country for residence. That is what it means. Being loyal to your, being loyal and having love for one's country is part of the Islamic faith only. So Islam, what exactly Islam means is peace, right? So if you are looking for peace, if your land is giving that, then I don't feel I don't know why people are so ashamed to say Bharat Mata ki Jai, or say, we love our country, or like our country is higher to us than anything. So this actually, my brother is studying in US now. So he says there are so many Muslims who are from India, who are from Pakistan, who are from Afghanistan. They are gelling up very easily, and there the religion, what we are saying, Hindu, Muslim, or anything doesn't matter. What exactly matters is from where are you coming. Here in India we say that, okay, I'm a Hindu and you are a Muslim, you are a some other caste, Christian or anything. But there, when we go there, they say I'm an Indian. That is what comes first, right? So when anyone holds, for example, any police or cop holds any of my brother, they won't ask which religion are you from. They ask which country are you from. It applies same for my my friend, like, who is also studying in US. So when they capture, they don't check their religion, they check their password, and if that password says he belongs to India. So that is what matters most, and I don't feel ashamed, or I shouldn't feel ashamed saying Bharat Mata ki Jai. We should be proud also. I think instead of being ashamed, we should feel proud of this country. It has given us everything. There are some countries which are
South Sudan, or so many countries where people are killing themselves. There is Afghanistan. We have a very good example. There is Israel. There are so many countries, they fight for the nation. There are countries like North Korea, where you don't have choice to watch your own TV serial, or you don't have any right to do whatever you feel like. So even the haircut, you have to get it like whatever the country's head says to you, you have to get that haircut. Here it is nothing like that. अरे यार तुम बाल छोड़ लो, मुंडन करवा लो, कुछ भी करवा लो, like you have the freedom. And nowadays though it has gone to extreme level. People wants to go naked on the streets. And no one is saying nothing for that, because this is a country where there is democracy here. Whatever you feel like, you do it. But the country has given so much to you. It has given the freedom, it has given the life, it has given water, everything. Just saying Bharat Mata Ki Jai, or standing whenever the Jana I don't know why people are making so many propaganda or big words, which actually is dividing. So as I told you, I studied in Muslim school. Whenever we talk normally, we don't have any conflicts, but whenever these kind of things comes, right, like I sense that my close friend who knows everything about me, whenever I speak towards this, he slightly shies away. And that actually creates a difference. That actually creates thinking that okay, वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसका कास्ट अलग है, मेरा कास्ट अलग है, वो आ जाता है यार. When we just obey our country, whenever he thinks this is his country, that is the best. Then this country will go to a next level. And I have seen many of my Muslim friends, even now they feel that India is not their country. I don't know why. I really don't know why. So let's come to one conclusion: whether you love this country or not. That is the first point I want to ask any Muslim friend who is there here. Whether do you love this country from your heart or not, or whether do you still think that some Hindu will come and chop your head? If that is the case, please let us know. My dad works in a police department. I'll help you out. If that is the same situation what you're going through. Yeah, thank you, Arjun, again, and much appreciate for the these kind of concepts. I really enjoyed talking to you. Thank you. Alright, thank you, Shubh. Guys, can I ask you one Arjun, just a second. Can you take Nupur J Sharma up? हाँ, मैंने मैम को इनवाइट किया. मैम प्लीज कम अप. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणाम, नमस्कार, राम राम सभी को. यहाँ पे एक बार मैं रूम दोबारा रीसेट कर देता हूँ. भारत में क्या भारत माता की जय बोलना एक क्राइम है? जैसा भी रिसेंटली मैंने एक इंसिडेंट था वो बता चुका हूँ, जो है एमपी का एक इंसिडेंट था उसके बारे में. तो अप इंडिया के अंदर ही वो आर्टिकल है. अगर आप चाहो तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ और लगा देता हूँ अपने प्रोफाइल पे. जी आगे किसी को क्वेश्चन करना था. मिस्टर जे, आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे. जे मुल्तानी, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. हाँ जी. जी जे मुल्तानी जी कुछ पूछना चाह रहे थे, आप पूछिएगा. ऑलराइट, आगे किसी को अपनी बात रखनी थी? नटखट भाई और उमेश भाई. पहले नटखट भाई, फिर उसके बाद उमेश भाई. नटखट भाई नमस्कार बोलिएगा भैया. नमस्ते अर्जुन भाई. हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, ये अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ था कि दो टाइप के मेन वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट चलते हैं. एक होता है फादरलैंड, एक होता है मदरलैंड. या तो हम अपनी जमीन को अपने पिताजी से, अपने एंसेस्टर्स से उस तरीके से जोड़ते हैं, अदरवाइज हम अपनी मातृभूमि बोलते हैं. जो जर्मनी और उसके आसपास के देश हैं, जो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, दे कॉल इट एज फादरलैंड. और बाकी सारे देश, काफी देश, उन्हें मदरलैंड बोलते हैं. इस्लामिस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ना इनका फादरलैंड है ना इनका मदरलैंड है, क्योंकि जब इनकी शुरुआत हुई तो इनके पास कुछ नहीं था. इन्होंने किया कब्जा करना, या तब इनके पास कुछ नहीं था तो इन्होंने किया कब्जा करना चालू.
और हर जमीन पे कब्जा करने लगे। और जिस जमीन पे ये कब्जा करने लगे उसको ये ना तो फादरलैंड बोले ना मदरलैंड बोले, ये उसे होमलैंड बोलने लगे। जहां हम रहते हैं वो हमारा होमलैंड है। तो ये फादरलैंड मदरलैंड वाली इनकी जस्ट चीजें ही नहीं आती, तो वो मातृभूमि वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनके दिमाग में, क्योंकि इनकी मातृभूमि, इनकी पुश्तैनी भूमि कोई है ही नहीं। ये पैदा हुए, लड़ाई झगड़ा करा, जमीन पे कब्जा किया और कब्जा करते करते आगे बढ़े, और आज भी वही कर रहे हैं। चाहे वो आप लंदन में देख लो, चाहे आप जर्मनी में देख लो, चाहे स्पेन में देख लो, चाहे इंडिया में देख लो, जिन्होंने इनको शरण दी है उनकी जमीन पे कब्जा करना चालू कर दिया। लंदन में नो गो जोन्स बनी हुई है, पेरिस में नो गो जोन्स है, जर्मनी में नो गो जोन्स है। वो ऐसी नो गो जोन्स है जहां पुलिस वाले खुद आपको मना कर देते कि आप मत जाओ, जाओगे तो हम आपका कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके साथ कुछ हुआ तो। ये ऐसी नो गो जोन्स है जहाँ पे सिर्फ इनके शरिया कोर्ट्स चलते हैं, शरिया लॉस चलते हैं। तो अब दिक्कत वही हो जाती है कि वहां पे जाके भी अगर इन्होंने अपना लैंड बना लिया है तो जो किसी को भी अपना मानते ही नहीं है। इनका बस ये है कि कब्जा करो और आगे बढ़ो। तो इंडिया में अगर हम उनको बोलते हैं कि आप भारत माता की जय या वंदे मातरम बोलिए, तो इनकी जान जल जाती है, क्योंकि ये कैसे बोलेंगे? इनको सिर्फ एक अल्लाह अकबर वही सिखाया है, वही बोलना है। उसके आगे इनको ना किसी की जय बोलना है, ना किसी को नमन करना है, ना किसी के आगे झुकना है। बस, थैंक यू सो मच। अर्जुन भाई मैं थैंक यू नितिन भाई। नितिन भाई आता हूँ मैं। प्रतीक भाई होल्ड ऑन यार, भाई छोटी प्रतीक भाई होल्ड ऑन। मिस्टर उमेश जी थे, उमेश जी से नमस्कार प्रणाम। नमस्कार प्रतीक भाई लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं आपको जी। उमेश भाई नमस्कार बोलिएगा। मैं नटखट जी की बात को आगे बढ़ा के बोलना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए तो इनके जो मुसलमानों के रिलीजन में ही ऐसा नहीं है कि वो औरतों को रिस्पेक्ट करते हैं। दे वर्शिप प्रॉफेट मोहम्मद, और उन्होंने क्या किया सबको ही मालूम थे। इट वाज एन एक्ट ऑफ पेडोफाइल, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विद द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया राइट नाउ इज, यहाँ पे जो कांग्रेसी है जो आते हैं, दे विल बी शेमलेसली डिफेंडिंग द डायनेस्टी। वो रोमन माता की जय बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भारत माता की जय बोलने में उनको प्रॉब्लम है। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस कांग्रेसी, जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल सेक्युलर्स और जो विक्टोरियन एक्सेंट के साथ बोलकर दे वांट टू सुपरसीड देमसेल्व्स। उनके अंदर कुछ नॉलेज नाम की कुछ चीज नहीं है। These are shameless Islamist and leftist. These guys, आज अगर आप देखा जाए तो 10 जनपद का जो एरिया है, it is greater than the 7 RCR. On what basis this Sonia Gandhi is occupying 10 जनपद? She is just a leader of the opposition, wife of former Prime Minister of India. She should be chucked out of the 10 जनपद. मुझे तो ये करना चाहिए. First of all, we should try to raise this issue and awareness. This is the way we have to fight them. अगर इनको भारत माता की जय नहीं करना चाहिए तो let them go to the Mecca and Medina. वहां पे जाके रह सकते हैं। हमारे देश में इनकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि मदरलैंड इज द बेसिक थिंग। अगर इनको अपनी मदर से रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, then let them, इनको जहन्नुम में जाने दीजिए। This is we have to have no tolerance towards it. Okay. अगर उनको प्रॉब्लम है then they ask them whether they worship the mother or not, with what कौन सी नजर से देखते हैं अपनी मदर्स को। Definitely they will have no answers for that. Okay, this is my limited submission. Thank you. ऑलराइट, थैंक यू उमेश जी, थैंक यू सो मच। प्रतीक भाई आप अपनी बात रखिएगा प्लीज। सुनाई दे रहा जी भैया आपकी वॉइस आ रही है, बोलिए। भाई मैं ये जो मुसलमानों की बात हुई कि जी मुसलमानों के लिए एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो कश्मीर के मुसलमानों से मिलोगे ना, आपकी आवाज बड़ी एको हो रही है प्रतीक। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ जो कश्मीर के मुसलमानों से आप कभी मिलोगे ना, वो एक टर्म यूज करेंगे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर या इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो एक रीजन से करते हैं कि जी वो दे हैव हेटेड फॉर देयर ओन कंट्री, दे हैव हेटेड फॉर देयर ओन रूट्स। कश्मीर का पाकिस्तान से क्या रिश्ता? ला इलाहा इल्लल्लाह आपने देखा है हाईवेज पर लिखा हुआ हो। जी। अच्छा, वो जब आप जाओगे एप्पल ट्रेड वाला जो रूट है नॉर्थ में, जब वहां पर तो इंडिया में नहीं, जैसे सामने देखोगे आपकी बॉर्डर लगी हुई है, ठीक है, चेक पोस्ट है कि आगे बॉर्डर लगी हुई है, आप बॉर्डर पे देखोगे यही लिखा होगा क्लियरली, कश्मीर का पाकिस्तान से क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी, तो ये सब जी, और वो पाकिस्तान साइड को बोलेंगे आज़ाद कश्मीर, और वो इसका ये रीज़न देंगे कि जी वहाँ पे मुसलमान है और उन लोगों ने हिंदुओं से ये ज़मीन हड़पाई है, तो उसको टर्म देंगे आज़ाद कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान रूल करते हैं।
यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देम हिंदूज रूल करते हैं, तो ये इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो ये मुनाफिक मक्कार मुसलमान जहाँ पे भी मिले आप उनको 2 थप्पड़ मारा करें। मेरा वो सबसे गुजारिश है कि आप कभी कोई कश्मीरी मुसलमान से मिले, आप उससे ये पूछे कि आप क्या मतलब आपका मदरलैंड ये है कि आपका मदरलैंड वो है, या अगर वो बोलेगा इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आजाद कश्मीर, उसको वहीं पे 2 थप्पड़ मारिए। ये आपका मेरा एक्सपीरियंस है। 10 बंदों में कभी नहीं बोलेंगे वो। हाँ, तू अकेला मिलेगा वो तब बोलेंगे, 10 बंदों में वो कभी नहीं बोलेंगे। वो तो सुअर आते हैं ना झुंड में। पर मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस नोट किया है कि जी एक मुसलमान वहाँ के कुछ ऐसे होते हैं। आपका भी अगर होगा तो बताना मुझे। मैंने भी किया ये, कर चुका हूँ मैं बहुत बार। ठीक है रजत भाई, ठीक है प्रतीक भाई, थैंक यू। प्लीज म्यूट योरसेल्फ रजत। आगे किसी को टॉपिक पे अगर बात करनी है तो हाँ मुझे करनी है, मैं बोल सकता हूँ प्लीज। नितिन भाई, अखिलेश भाई। नितिन भाई पहले आप बोलिएगा, फिर अखिलेश भाई। नितिन भाई प्लीज बोल। ओके। सभी सहधर्मियों को प्रेम भरा प्रणाम, विधर्मियों को गालियां। अर्जुन भाई, आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि ये नहीं बोलना चाहते यार भारत माता की जय, तो तुम साले मत बोलो, ठीक है ना। हमें बताओ कि यार हम तो नहीं बोलना चाहते और ये गलत चीज है। जो हम बोल रहे हैं बंदे, उनको क्यों मार रहे हो यार, है? जो बोलना चाहता है उनको क्यों पकड़ के पीट रहे हो? कोई बच्चे ने बोला किसी ने और तुमने इनको पकड़ के पीट दिया, जिन बच्चों ने। तो यार ये चीज निकलती है, ये चीज सुन्नत की चीज है। जो ये कर रहे हैं ये सुन्नत है। जो आप लोगों को पता होगा, एक शब्द है जालिम, और ये बोलते हैं जुल्म किया। जुल्म का हम लोग क्या अर्थ निकालते हैं? हम लोग यूजुअली अर्थ निकालते हैं यार जो किसी के ऊपर कुछ यातना कर रहा है? लेकिन जुल्म तो अरबी शब्द है। हम इक्वेट कैसे कर सकते हैं कि भैया यातना करना ही जुल्म है, किसी को परेशान करना ही जुल्म है? एक्चुअल में प्रॉफिट मोहम्मद जो थे इनके, उनको जो मानता नहीं था, उन्होंने ये किया था कि भैया तुम एक बंदे को पेल दिया उन्होंने, ठीक है। फिर पूछा गया यार ये क्यों तुमने इसको किया? कहते यार ये जालिम है, ये जुल्म कर रहा है, इसने मुझे माना ही नहीं कि मैं प्रॉफिट हूँ, ये जुल्म कर रहा है, इसने मेरे साथ जुल्म किया, ये जालिम है, तो मैंने इसको पेल दिया। तो ये जो विक्टिमहुड है ना, ये सबसे पहला विक्टिमहुड प्ले करने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद ही थे। और ये जो चीज ये कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि अरे ये तो गलत बात है, इनके हिसाब से यही सही चीज है, यही सही चीज है। और यहाँ जो लिबरल आ रहे हैं, ये सारे जहन्नुम की आग में जलेंगे। और जो अबू बकर अल बगदादी और उसामा बिन लादेन जैसे अच्छे मुसलमान, सच्चे मुसलमान जो है, वो 72 हूरों के गोद में खेलेंगे। तो ये एक्चुअल में ये इशू ये है कि ये लोग जालिम मानते हैं जो प्रॉफिट को नहीं मानते, और ये उस पर विक्टिम प्ले करके गलत कर रहे हैं हम मान के, और हम वाजिबुल कत्ल हैं, और इनके ऊपर हमारा कत्ल करना इनके ऊपर नाज़िर है, हक है इनका। तो बस मुझे ये बोलना था कि ये इशू है कि ये लोग इसलिए मारते हैं क्योंकि हम लोग जालिम हैं, हम जुल्म करते हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद ने यही बोला था कि भैया इसने जुल्म किया है, मुझे माना नहीं इसने। कितना गंदा आदमी है ये, कितना गंदा आदमी है, इसने मुझे माना नहीं कि मैं प्रॉफिट हूं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट हूँ, लेकिन इसने माना नहीं, तो मैंने इसको मार दिया, तो ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू अर्जुन भाई। थैंक यू भैया। आगे अखिलेश जी। धन्यवाद अर्जुन जी, और सभी को प्यार भरा नमस्कार। ये टॉपिक जो है काफ़ी अच्छा है, बट एज पर माय एक्सपीरियंस, मैं अब कई सालों से JNK में ही रह रहा हूँ, कई सालों से इनके बीच हूँ, लड़े हैं, झगड़े हैं, सर फूटे हैं, दोस्ती की है। एक चीज़ जो मुझे पता चली और सबको जान लेनी चाहिए कि हमारे दुश्मन मुस्लिम्स नहीं है। रियलिटी इज दिस, हमारे दुश्मन हमारे लोग हैं। अपने जो हम मेजॉरिटी में है सर, इस टाइम अगर मेजॉरिटी एक हो जाए तो देयर इज नो वन टू फेस यू। एक छोटा सा एग्जांपल सर मैं आपको दे रहा हूँ। अभी जो गुड़गांव का इशू चल रहा है, सबको पता ही होगा, सभी अवेयर है यहाँ पे। वहाँ दिक्कत ये है कि वो लोग वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, प्रॉब्लम सभी को हो रही है। 100% जनता जो वहाँ की है वो प्रॉब्लम में है, लेकिन आगे कौन नहीं आना चाहता। हिंदुज्म में प्रॉब्लम ही हम लोग 10 यहाँ बात करेंगे, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है सर। अगर हम 10 लोग लड़ने जाते तो वो 1000 लोग आते थे, हम यहाँ से 5 हो जाते थे, वो 10,000 हो जाते थे। हम कम होते थे, वो ज्यादा हो जाते थे। रियलिटी उनके में यूनिटी है सर। उन्होंने 5 टाइम साथ मिलना है, फ्राइडे को उन्होंने साथ बैठना ही बैठना है, वहां साथ बैठ के जो डिसाइड करना है, किसको वोट देना है, कब नया प्रोटेस्ट करना है, कब किसको पत्थर मारना है, वो पूरा प्लान है सर। आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर उनसे साथ लड़ना है, आपकी कोई भी, अभी आप तो हरियाणा में तो आपकी सरकार है सर, बीजेपी की सरकार है,
अपने सारे बंदे अपने हैं, तब भी वहां पे जब प्रोटेस्ट करने हमारा लड़का गया, वीएचपी का लड़का, उसको उठा के पुलिस ने जेल में डाल दिया। दैट इज बिकॉज कि पुलिस को पता है कि आप उनसे नहीं बहस कर सकते। अगर आप उनको बहस करने गए तो अभी हजारों की संख्या में निकल आएंगे रोड्स पे और गाड़ियां तोड़ने शुरू कर देंगे, जैसा बेंगलोर में हुआ या जैसा दिल्ली में हुआ। तो सर रियलिटी यही है कि एक ही चीज मैं कहूंगा, चाहे कोई भी इशू हो, एक ही बात है कि हमारे दुश्मन ये नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे लोग हैं, लिबरल्स या जो भी कहें उनको। हमें बस यूनाइटेड रहना है सर, कुछ नहीं बोलेंगे ये। मैंने 80% पॉपुलेशन और 20% हिंदू पॉपुलेशन में भी देखा है, ये चुप रहते थे कि उनको पता था कि 20% आ गए तो 80% कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर 80% उनके वेपन्स भी होते तब भी 20% पॉपुलेशन ने 80% पॉपुलेशन को रोका है। 90% पॉपुलेशन मुस्लिम, 10% पॉपुलेशन हिंदूज, 10% पॉपुलेशन ने 90% पॉपुलेशन का मुकाबला किया है, इवन दो दे वर हैविंग AK-47s। दैट इज नॉट बिकॉज कि उन 10% पॉपुलेशन में कोई बहुत ही ब्रूस ली थे, नहीं, दे वर यूनाइटेड 10%। अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे भाई, गोली चलेगी, दो मरेंगे, लेकिन अपने हिंदूज में क्या है, अगर एक डंडा पड़ा किसी एक पुलिस वाले से, 20 पीछे भाग जाएंगे। हमारे साथ होता, हमारे अगर हम 10 लड़के खड़े हैं तो 10 लड़कों को अगर 10 डंडे पड़ रहे हैं, हमने खड़ा होना है क्योंकि हम सच के साथ है सर। अगर भारत माता की जय बोलने पे तो इतनी मार पड़ती थी कश्मीर में एक टाइम पे, JNK में, इवन जो चिनाब वैली है भद्रवा, कि हमने कैसे भारत माता की जय बोल दिया, हिंदुस्तान का झंडा निकालने पे डंडे पड़ते थे। आज तो चेंज हो गया ना, ऐसा चीजें नहीं रही, थैंक्स टू मोदी साहब, चलो कुछ तो चेंज हुआ है। लेकिन वो टाइम भी, अगर उस टाइम पे भी अगर हम खड़े हो, अगर हम भाग जाते, अगर हम नहीं रुकते वहां पे, मरे हमारे बंदे मरे। लेकिन मरना इज नॉट द ऑप्शन। ऑप्शन है कि आप एक हो। अगर मेरे पीछे 20 लड़के खड़े और मुझे पता है कि मेरा सर फूटेगा, लेकिन वो 20 तब भी खड़े रहेंगे, तो दैट टाइम मैं भी खड़ा रहूंगा। लेकिन मुझे पता है अगर 19 भाग जाएंगे तो मैं भाग जाऊंगा, सिंपल इज दैट। मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है सर, वो यूनाइटेड है, वो सर फूटे, मार खाए। अब जैसे ये जो इंसिडेंट हुआ भारत माता की जय, अब वो लोग किसी को नहीं बोलेंगे, खत्म बात, बिकॉज दे आर क्लियर विद देयर पाथ। हमारे में ऐसा नहीं है, हम फिर थोड़े सेकुलर हो जाते हैं, कुछ लोग लिबरल हो जाते हैं, अरे कोई बात नहीं, पुलिस बोल रही है, लॉ एंड ऑर्डर मानने वाले लोग हैं हम। ये लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, दे बिलीव इन वन थिंग, और रियलिटी वही है। हमें ये फेस करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम एक कैसे हो। उनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते सर, हाँ हम एक हो जाएं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 साल के अंदर कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं होंगे। धन्यवाद। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आगे अपने अब है फिर जॉनी, पहले जॉनी है और उसके बाद अब है जॉनी भाई, प्लीज गो ऑन। थैंक यू सो मच। क्या नाम था आपका? अर्जुन। एंड हेलो एवरीवन। जस्ट मैं ये कहने वाला था कि मैं सबकी काफ़ी बातें सुनी, सबकी अपनी अपनी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, उस बेसिस पे सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जस्ट मैं इस बात पे कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ कि यार भारत माता की जय हो, या हाँ या हेलो, कौन, किसी को बोलना है कुछ? नहीं सर, प्लीज गो ऑन भाई। बीच में माइक अनम्यूट मत करना यार। जी जॉनी भाई गो ऑन। तो ना यार, हम अच्छा कोई भी हिंदू ये नहीं चाहता है कि यार सारे मुस्लिम यहाँ से चले जाएं, या कोई भी मुस्लिम जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी वो ना वो चाहते हैं कि सारे हिंदू यहाँ से चले जाएं, ना कोई किसी। एक मिनट ब्रो, प्लीज यार प्लीज, मैं बोल लूँ, आप बिल्कुल गलत कहना, मुझे बाहर कर देना यार, मैं बोल लूँ जस्ट, ठीक है? अभी मैंने जस्ट चाय चढ़ाई है, तो ये मत सोचो कि मतलब पानी चढ़ाया तो ये मत सोचो कि मैं उसमें जहर डाल दूंगा, चाय ही बनेगी, रुक जाओ। टाइमिंग का ध्यान रखो। अरे बिल्कुल रुक तो जाओगे, इतनी में बोल देता, खत्म हो जाता है। होल्ड ऑन एक सेकंड, बीच में कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा जब जॉनी भाई बात कर रहे हैं। जॉनी भाई प्लीज आप अपनी बात रखिए, जो भी बीच में बोलेगा नीचे डाल दूंगा। जॉनी भाई गो ऑन। जी जी थैंक यू। तो मैं ये जस्ट कह रहा था कि यार ऐसा नहीं है कि यार भारत माता की जय बोलने पे किसी को बुरा लगता है, या आप असलियत में देखें कि ऐसा कतई नहीं है कि यार किसी के मुस्लिम वाली बात करने पे किसी को बुरा लगता है। ग्राउंड लेवल पे किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लोगों को एक जीवन चाहिए, एक सबका साथ चाहिए। बट ये बात है जब कट्टरता पे आ जाती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, आपको वही भारत माता की जय बोलना जहाँ किसी को दिखाना है, किसी को गिल्ट फील कराना, तब ये गलत हो। चाहे अगर आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, कोई भी, हम 5 उंगलियां हैं। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह जहाँ पे सब कोई है यार, हर कोई छोटा बड़ा। तो इस चीज को अगर हम एकता के दृष्टिकोण से देखें, न किसी, तो हम दुनिया में सबसे आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई है।
और हर किसी की मेंटालिटी अलग होती, सोच देश के विकास में आ सकती। लेकिन हम क्या करते हैं, कट्टरता की बात आती है। हिंदूज में अभी नहीं है उतनी, हम मुस्लिम की बात मैं खुल के बोल सकता हूँ ऐसा कि वो लोग अपने धर्म को लेकर कुछ ज्यादा ही मतलब ओवरफ्लो में आ जाते हैं। यार तुम दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हो, लेकिन तब भी तुम्हें लगता है कि तुम डराए सताए वगैरह वगैरह। तो कट्टरता पहले उधर से होती है, लेकिन हमें उसका बचाव करते हुए हम भी कट्टरता दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं, मेरा ये मानना है। और चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अभी हम काउंटर वगैरह ले आए। मैं बोलूं सर, एक मिनट मैं कुछ बोलूं। अर्जुन भाई, दो मिनट अर्जुन मुझे बोलने का मौका दे। आपको काउंटर देना है तो काउंटर देने के लिए आप 10 सेकंड मिलते हैं भाई। काउंटर वत्सल भाई को देना, तो वत्सल भाई प्लीज अपना काउंटर। जब इन्होंने हिंदू कट्टरता और मुस्लिम कट्टरता को इक्वेट किया ना, तभी मेरा खून खोल गया। मतलब हिंदू कट्टरता का मतलब क्या, आरएसएस लाठी के साथ, मुस्लिम कट्टरता का मतलब क्या, आईएसएस बंदूकों के साथ जहां औरतों और बच्चों को मारती है, फीडोफीलिया करती है, क्या कहते हैं, गेस को छतों से घेर देती है, इजराइल को बोलती है नामो निशान मिटा देंगे, हिंदुस्तान को बोलती है गजवा हिंद कर देंगे। हिंदू कट्टरता का मतलब क्या, दो बच्चों की लड़ाई होना, क्रिकेट मैच के बाद लड़ाई होना, फुटबॉल क्या कहते हैं, मूवी थिएटर को ये बोलना कि मूवी पब्लिश मत करो। सो दिस काइंड ऑफ फॉल्स इक्विवेलेंसी ऑफ माय रिलीजन विद अ वेरी क्रिमिनल थॉट इज नॉट डाइजेस्टेबल। That's it. That's my comment. Please allow me to counter him. मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। भाई तुम जो बोल रहे हो ना जॉनी, यार प्रॉब्लम इज नॉट इन द फंडामेंटलिज्म यार, इट्स प्रॉब्लम इज इन द फंडामेंटल्स इटसेल्फ। अब जैन जो है वो इतना पीसफुल रिलीजन है, वो इतना पीसफुल धर्म है, उसका एक्सट्रीमिस्ट पीसफुल ही होता है यार, उससे ज्यादा पीसफुल बंदा कोई होता ही नहीं है यार। इस्लाम साला इतना वायलेंट रिलीजन है कि उसका एक्सट्रीमिस्ट वायलेंट ही बनेगा यार। तुम कैसी बात कर रहे हो यार। अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़े और चीजें पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि इस्लाम भी बहुत शांत धर्म है। माइक म्यूट कर लो यार प्लीज यार, मेरी आवाज सेकुलर आ गया, इसको भगाओ यहाँ से। अरे रुक जाओ यार, होल्ड ऑन। हम आधे मिनट के लिए हंस सकते हैं क्या उस पॉइंट पे? हाँ नहीं मैम, माइक ऑफ करके आराम से सीखा। I want to give a counter of the same thing. अर्जुन भाई, भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक नंबर टॉपिक पे आते हैं। वंदे मातरम। एक नमन गिरजा पार्वती हर बोला हर महादेव। बीच में कोई मत बोलो यार, रुक जाओ। पहले भाई से मैं बात कर लेता हूँ एक बार। सारे म्यूट कर लेना प्लीज एक बार। भैया आपने कट्टरता की बात करी, तो हिंदू कट्टरता क्या होती है, थोड़ा सा समझा पाओगे ताकि आप? बिल्कुल समझाऊंगा। मैंने कट्टरता की बात कही ना, हिंदू या मुस्लिम दोनों को इंक्लूड किया, मैंने सभी धर्मों को इंक्लूड किया। एक मिनट रुक जाओ, एक चीज, छोटी सी चीज बताऊंगा मैं। अरे रुक तो जाओगे यार जी, हम तो रुके हुए हैं। ढीले सब ठीक, अच्छी बात है, कोई नहीं। मैं आपको सच इतना बता रहा हूँ कि अभी हमसे पहले भी बहुत से धर्म थे जो खत्म हो गए, जो कट्टरता को अपना नहीं पाए, तो वो खत्म हो गए। हमें भी अपनानी होगी, मानते हैं, क्योंकि हम अभी इन सब चीजों में जुड़े हैं। अभी तक हमने किसी धर्म का विरोध नहीं किया है। एज अ सनातन धर्म जोनी, आप ना स्टैंड आने भी लग गए हैं। तू तो रजत जोनी भाई, आप भाई ये सनातन की इतनी बात कर रहे हैं, इससे अद्वैत फिलोसफी समझिए जरा, मैं भी समझ लेता हूँ और हम सारे 80-90 बंदे भी सुन लेंगे। अद्वैत क्या है समझाइयो भाई, सनातन को तू इतने अच्छे जानता है तो। और तू वकालत कर रहा है, बता। अस्मा बिन मरवान थी, बहुत ही अच्छी पोएट थी अरब की, बहुत ही अच्छी लेडी थी, बड़ी नोबल लेडी थी। वो यही काम करती है जो फ्रेंच की लॉ मैगजीन करती है, ठीक है। उन बेचारी लेडी ने कुछ ऐसे सख्त, मतलब कुछ ऑफेंसिव नहीं बोला था इस्लाम के खिलाफ। उन्होंने मोहम्मद प्रॉफिट को क्रिटिसाइज किया, तो सबने कहानी तो बड़ी सुनी है। तो वही कट्टरता तो मैं बोल रहा हूँ। होल्ड अप, सुन मेरी बात अब, ठीक है। मैं ऐसे टोकना नहीं चाहता था, मैं कभी नहीं टोकता किसी को फ्लो में, बट लिसन टू मी नाउ। तो उन्होंने गॉड के बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने मोहम्मद प्रॉफिट, जो मतलब फाइनल प्रॉफिट ऑफ गॉड है, जो मतलब जिसे दुनिया के मुस्लिम्स फॉलो करते हैं। सो उन्होंने क्या किया कि आपने ये कहानी तो बड़ी सुनी होगी कि जो बूढ़ी औरत कूड़ा फेंकती थी, उस बूढ़ी औरत का हालचाल पूछने गए थे मोहम्मद प्रॉफिट। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मोहम्मद प्रॉफिट उस अस्मा बिन मरवान की झोपड़ी में गए